हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे। द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, साइड AB of parallelogram ABCD is produced to any point P। मतलब AB is produced to any point P, a line through A and parallel to CP, a line through A and parallel to CP meets CB produced at Q, CB produced at Q, ठीक है। And then parallelogram BPQR is completed, parallelogram PBQR is completed. Show that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PBQR, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QRPB, ठीक है। सो नाउ आपको एक हिंट दिया है क्वेश्चन में, जॉइन AC एंड PQ, जॉइन AC एंड PQ, ठीक है। नाउ कंपेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ and area of triangle APQ, and area of triangle APQ, ठीक है। So ABCD is a parallelogram, correct? ABCD is a parallelogram and AC is the diagonal, correct? So area of triangle ABC, so area of triangle ABC is equal to half of area of parallelogram ABCD, correct? Now BQPR, BQRP is a parallelogram given, ठीक है, and QP is its diagonal. So area of triangle BQP is equal to half of area of parallelogram BQRP, correct? Now since triangle ACQ and triangle APQ, these are on the same base AC and between the same parallels AQ and CP, therefore area of triangle ACQ is equal to area of triangle APQ, करेक्ट। सेम यहाँ पे हमने थ्योरम यूज किया है, थ्योरम से दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को इक्वल प्रूफ किया है, करेक्ट। नाउ अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ is equal to area of triangle APQ minus area of triangle ABQ, करेक्ट। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल्स चाहिए। सो इन दो ट्रायंगल्स के लिए पूरे ट्रायंगल्स में से अगर आप इस ABQ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये और ये मिल जाएगा, करेक्ट। इसीलिए सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle BPQ, that is area of triangle ABC is equal to area of triangle BPQ, करेक्ट। सब जो ये तीन इक्वेशन से आपको क्या पता चला? ये पता चला कि हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BQRP, करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BQRP। अब हमने ऐसा क्यों किया? व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स? बिकॉज यहाँ पे देख लो हाफ आ रहा था एंड आपको क्वेश्चन में क्या बोला था प्रूफ करने की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BQRP। हाफ आपको रिमूव करना था। हाफ कैसे रिमूव करोगे? मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो आपका 2 इंटू 1/2, 2 और 2 निकल गया, बचा कितना? 1। सो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BQRP। नेक्स्ट, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O। यहाँ पे क्या दिया है? AB is parallel to DC and they intersect at O। Prove that area of triangle AOD
prove that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स AOD एंड BOC के एरियाज इक्वल है. ठीक है. नाउ ट्राइंगल ABD and triangle ABC, these both have the same base AB and they lie between the same parallels AB and DC. Correct? So therefore area of triangle ABD is equal to area of triangle ABC. Correct? Now अब आपको क्या चाहिए था? आपको AOD एंड BOC चाहिए था. AOD एंड BOC आपने क्या पूरा प्रूफ किया? ABD एंड ABC. तब इसमें से अगर आप ABO वाला पार्ट निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा बाकी दो ट्राइंगल्स जो आपको चाहिए. So subtracting area of triangle AOB from both sides, we get area of triangle ABD minus area of triangle AOB is equal to area of triangle ABC minus area of triangle AOB. That is area of triangle AOD is equal to area of BOC. Proved. Correct? Sum complete. Very easy. Next. ABCDE is a pentagon. ABCDE is a pentagon. आपको पता है पेंटागन क्या होता है? A quadrilateral having 5 sides is called a pentagon. A line through B and parallel to AC. Line through B and parallel to AC meets DC produced at F. A line through B parallel to AC meets DC produced at F. Show that area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF and area of triangle AEDF is equal to area of quadrilateral ABCDE. Area of quadrilateral AEDF is equal to area of ABCDE pentagon. समझ में आया क्या प्रूफ करना है? Let's start. अब देखो ट्राइंगल ACB and triangle ACF. Triangle ACB and triangle ACF, they lie on the same base AC and between the same parallels AC and BF respectively. Correct? Therefore area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF. Correct? Now since area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF, we have proved. So अब अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल AEDC ये पार्ट को अगर आप दोनों ट्राइंगल्स में ऐड कर दोगे, अब यही पार्ट को क्यों हम ऐड करेंगे? क्योंकि इसका सेम बेस AC है एंड AC से जुड़ा है आपका ये क्वाड्रिलैटरल. करेक्ट? इसीलिए एडिंग एरिया ऑफ AEDC टू बोथ साइड्स वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEDC is equal to area of triangle. Since area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF proved, therefore adding area of AEDC on both sides, we get area of triangle ACB plus area AEDC is equal to area of ACF plus area of AEDC. Correct? तब आपको क्या मिल जाएगा? ACB plus AEDC is equal to ABCDE. Correct? And ACF plus AEDC will give me AEDCF. Correct? So is equal to area of AEDF and is equal to area of ABCDE. समझ में आया? Next. A villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. मतलब ये विलेज है इतवारी, उसके पास एक लैंड है जिसका शेप एक क्वाड्रिलैटरल जैसा है. द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर. मतलब ग्राम पंचायत ने क्या डिसाइड किया कि वो उसके प्लॉट के एक कॉर्नर कोई ले लेगा क्योंकि उनको हेल्थ सेंटर बनाना है. इतवारी अग्रीज टू द अबव प्रपोजल. मतलब इतवारी ने उनके साथ हामी भर दी, उन्होंने अग्री किया विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड. मतलब जितना लैंड ग्राम पंचायत ले रही है उतना ही लैंड इतवारी को मिलना चाहिए इन ल्यू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट.
मतलब जो कॉर्नर से ले रही है उतना ही उसको उसके प्लॉट के जस्ट बगल में चाहिए ताकि वो एक ट्रायंगुलर प्लॉट बन जाए। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो प्रपोजल है कि एक कॉर्नर से प्लॉट लेना एंड एडजेसेंट प्लॉट दूसरा देना जो कि ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, वो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। नो, अभी ड्रॉ DF पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AC, करेक्ट, एंड जॉइन A एंड F। ठीक है, नाउ ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल DCF, triangle DAF and triangle DCF lies on the same base DF and between the same parallels DF and AC, correct? Therefore area of triangle DAF is equal to area of triangle DCF, correct? अब देखो, अब आप अगर इसमें से ये DEF पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, that is subtracting area of triangle DEF from both sides, we get area of triangle DAF minus area of triangle DEF is equal to area of triangle DCF minus area of triangle DEF, that is equal to area of triangle ADE is equal to area of triangle FEC या फिर CEF, करेक्ट। सो अब इससे क्या पता चल रहा है, अब ये ट्रायंगुलर प्लॉट फॉर्म हो गया, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन गया। सो द पोर्शन ऑफ ट्रायंगल ADE can be taken over by the Gram Panchayat by adding the land CEF to his land so as to form a triangular plot, that is triangle ABF। समझ में आया, ये देखो ये ट्रायंगुलर प्लॉट बन गया ABF, उसने ये पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन दिया, तो आपको ये प्लॉट बन गया ABF। ठीक है, समझ में आया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्यों हमने को ये प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि वो इतवारी जो फार्मर है उसने जितना प्लॉट दिया उतना ही प्लॉट वापस लिया, सेम एरिया का प्लॉट लिया, तो टोटल एरिया आपका सेम होना चाहिए। सो यही आपको प्रूफ करना है कि जो नया प्लॉट बना ट्रायंगल ABF, that is equal to the original quadrilateral plot that was there, okay? So now let's prove area of triangle ADE is equal to area of triangle CEF. Proved, we proved just now. Now adding ABCE on both sides, क्योंकि ये तो प्लॉट का पार्ट ही है, so adding ABCE on both sides we get area of triangle CEF plus area ABCE is equal to area of triangle ADE plus area ABCE, that is area of triangle ABF is equal to area of quadrilateral ABCD। समझ में आया हमने क्या किया, अच्छे से समझना और समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट सम, ओके। खाली इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे तो आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने आपको एक्सरसाइज 9.3 में सम्स देखे। सम्स आर इजी प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस। आप रोज मैथ्स करो, रोज अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको इसमें फ्लुएंसी आएगी। एंड फिर मैं बोलूँ थ्योरम्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि सेम चैप्टर्स आपके 10th में भी और एक हायर लेवल पे हैं, तो वो नहीं समझ आएगा जब तक आप ये 9th का नहीं समझोगे ठीक से, ठीक है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, रोज प्रैक्टिस करो मैथ्स, थ्योरम सारे देखो, कोई भी थ्योरम आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हैव अ वेरी गुड रिविजन। थैंक यू।